السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز۔ آج جو میں ناول پڑھنے جا رہی ہوں وہ ہے راہ غیر، جو کہ تحریر ہے مریم رحیم کی۔ امید ہے کہ ناول بھی آپ کو بہت بہت پسند آ رہا ہوگا، جو کہ فل آف سسپینس ہے، مسٹری ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 11۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سے سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ایپیسوڈ کے اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس کمرے کا منظر پہلے سے یکسر مختلف تھا۔ کانچ ٹوٹ کر زمین پر پھیلا ہوا تھا۔ پلنگ کی چادر آدھی زمین پر لٹک رہی تھی جس پر وہ بڑی شان سے بیٹھی تھی۔ سنگار میز پر موجود سارا سامان ٹوٹا پڑا تھا۔ پرفیوم کی کچھ بوتلیں چکناچور ہو چکی تھیں جن کے باعث خوشبو کا آپس میں امتزاج پیدا ہو رہا تھا۔ اتنی تیز خوشبو تھی کہ جس کی وجہ سے سر درد اٹھنے کا خدشہ۔ فاکسی کے ہاتھوں میں موجود چاقو پر خون لگا ہوتا جو اس کی انگلیوں سے نکل رہا تھا۔ دروازے پر کسی کی آمد ہوئی تو اس نے دیکھا کہ سامنے باس کھڑے تھے۔ وہ طائرانہ سی نظر کمرے میں دوڑانے لگی، پھر ان کے لبوں نے گہری مسکراہٹ کو چھوا۔ سننے میں آیا ہے کہ تمہارے خاص وفادار نے تمہیں دغا دے دیا ہے۔ بیچارہ۔ فاکسی زخمی مسکراہٹ لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھی۔ اوہ، تو آپ پھر سے زخموں پر نمک چھڑکنے آ گئے۔ سانس لینے کا وقفہ لی۔ آپ کو ترس نہیں آتا مجھ پر؟ کیا بنا کر رکھ دیا ہے؟ اپنی شخصیت کھو بیٹھی ہوں میں۔ باس نے کچھ بولنا چاہا تو اس کے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ ایسی ہوتی ہیں میری عمر کی لڑکیاں۔ چہرے پر عجیب سا کرب تھا، جیسے بہت سے پرانے زخم ادھیڑ لیے گئے۔ اس عمر میں لڑکیاں مہندی سے ہاتھ لال کرنے کا سوچتی، وہی میں خون جو خون سے ہاتھ لال کر رہی۔ کس کی وجہ سے؟ یقیناً آپ کی۔ فاکسی کی نظر ہاتھ میں موجود چاقو پر پڑی۔ کچھ یاد آنے پر گویا ہوئی۔ اس فجر کو دیکھیں، کتنی خوش قسمت ہے وہ۔ ہر کوئی اس کے لیے لڑنے کو تیار ہے، اور ادھر میں ہوں جو خود اپنے لیے لڑتی ہوں روز۔ آنکھیں اٹھا کر باس کو دیکھا تو اس میں ایک عجیب زخمی تاثر تھا۔ کاش آپ میرے باپ نہ ہوتے، آپ جیسے انسان کی بیٹی نہ ہوتی، بلکہ اولاد ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ اپنے قدم پیچھے بڑھا رہی تھی جبکہ باس خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ باپ بے غرض ہوتے ہیں، اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہونے دیتے، لیکن ایک میرا باپ ہے جو خود غرض ترین انسان ہے، جسے بس اپنے آپ سے مطلب ہے۔ خود کی زندگی شاد آباد رہے، باقی اولاد بھاڑ میں جائے۔ باس جانے کے لیے مڑے تبھی وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ آپ نے میری معصومیت مجھ سے چھینی ہے، مجھے اس راہ غیر پر لا پٹکا جس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اب میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ جس نے میری زندگی برباد کی ہے، میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے موت کی گھاٹ اتار دوں گی۔ اپنی بات کے اختتام پر ایک جھٹکے سے دروازہ بند کیا اور چاقو کی نوک اپنی انگلیوں میں چبھونے لگی تھی۔ گہری رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ وہ دونوں اس وقت پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے قدم ملائے چل رہے تھے۔ دونوں کے مابین خاموشی تھی۔ اس خاموشی نے ہر سو پہرا کیا ہو۔ دور کہیں کسی جانور کے چلانے کی آواز اس کو اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ اسے فراموش کیے بس چلے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے تابش نے حاشر کی طرف دیکھا جو مکمل سنجیدگی کا لبادہ اڑے ہوئے تھا۔ تابش محسوس کر رہا تھا کہ جب سے اس نے فجر کے بارے میں بتایا ہے تب سے وہ کھویا کھویا سا تھا۔ حاشر، کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے حاشر کو مخاطب کرنے کی کوشش کی۔ بھوری آنکھوں نے اس کی طرف دیکھا تو ان میں گہری اداسی تھی۔ بس اتنا کہا، پھر واپس سر جھکائے چلنے لگا۔ تابش کچھ پل رک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے کچھ قدم آگے تھا۔ کیا تم فجر کے لیے پریشان ہو؟ حاشر کچھ قدم دور ہی گیا تھا کہ جب اس نے تابش کی بات سنی، اس کے قدم رک گئے، پھر وہ جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ تابش کچھ دیر اسے آگے جاتا دیکھنے لگا۔ حاشر تھکا کر ایک سنگین بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے حاشر کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے پاس پہنچ کر حاشر کے چہرے کے تاثرات دیکھنا چاہے، لیکن کیونکہ گہرے اندھیرے کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ تابش نے کسی بات کو سوچا اور فوراً اس پر عمل پیرا ہونے لگا۔ وہ اپنی پینٹ کی جیب سے موبائل نکال کر کسی کو کال کر رہا تھا۔ گھنٹی کی آواز اس کے پرسکون ماحول میں کسی شور کا باعث بن رہی تھی۔ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے رات کے اس وقت؟ کسی کی نیند کے خمار سے بھری آواز گونجی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ہوں تابش، اس نے حاشر کی طرف دیکھتے کہا جو اب فٹ پاتھ پر سر جھکائے بیٹھ گیا تھا۔ تم نے رات کے اس وقت فون کیوں کیا؟ معلوم بھی ہے کہ اس وقت انسان تھک ہار کر سو رہا ہوتا ہے۔ اور کوئی وقت ہوتا تو شاید تابش اس کے جواب میں کچھ کہتا، لیکن اس وقت اس نے صرف اپنے دوست کے لیے اس بات کو درگزر کر دیا تھا۔ اور وہ پوچھنے لگا، جس کے لیے کال کی تھی، کیا تم فجر سے ملی تھی؟ کیسی ہیں وہ؟ وہ آہستہ سے حاشر کے ساتھ جا بیٹھا۔ اس نے موبائل کا اسپیکر کھول لیا۔ پیچھے سے آنے والی آواز بھی اچھے سے سن سکتا تھا۔ ہاں، میں گئی تھی اس کے پاس، ویسے ہی ہے، ابھی تک وہ کسی سے نہیں مل رہی، بس کچھ دیر اس کا انتظار کرتے بیٹھی رہی، لیکن وہ نہیں آئی۔ حاشر کی حالت اب ویسی ہو رہی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی اس تکلیف سے دوچار ہوگی۔ تابش نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
किसी तरह से उनसे बात हो सकती है या मुलाकात? उसकी नज़रें अब भी हाशिर के चेहरे पर थीं। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि वो जब किसी से बात करने से गुरेज कर रही है तो हो सकता है मिल भी ना सके। मगर मैं फिर भी कोशिश करूंगी, शायद मान जाए। तुम दुआ करना बस। ये कहते आयरा ने कॉल मुनक़ता की। उसी वक्त हाशिर उठ खड़ा हुआ और ताबिश से बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गया। ताबिश ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और दिल ही दिल में अपने दोस्त के लिए दुआ गो हुआ। उसी रात का दूसरा मंजर। यहाँ चारों तरफ वीरानी छाई हुई थी। अंधेरे में डूबे अड्डे पर किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। स्याह गौते कोट पहने, चेहरे पर मास्क सजाए एक लड़की और उसके साथ एक पहरेदार। अपने कदम इस खस्ता हाल दरवाजे से अंदर बढ़ाओ, जहाँ एक लड़की कुर्सी पर बेहोशी के आलम में सर लटकाए हुए थी। उसके बाल बुरी तरह से उलझे उसके चेहरे को छुपाए हुए थे। उसका वजूद किसी ढांचे की तरह मालूम हो रहा था, जैसे काफ़ी दिनों से फाके का शिकार रही हो। इस कमरे में कुर्सी के अलावा कुछ भी नहीं था। उस लड़की के सर पर एक जर्द रंग का बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी कमरे के चारों चारों दीवारों पर पड़ रही थी। कमरों की दीवारों पर स्याही से फॉक्सी दी फॉक्स लिखा नजर आ रहा था। वो बल्ब कभी एक तरफ जाता तो कभी दूसरी तरफ। अमूमन हर पुलिस स्टेशन के एक मखसूस कमरे में पाया जाता है। दफतन गहरी खामोशी में किसी के हील वाले जूतों की छाप सुनाई दी थी। वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता कमरे में आई तो बल्ब की हल्की रोशनी में उसका वजूद उजागर होने लगा। उस लड़की की तरफ आ रही थी। उसके हाथ में ठंडे ठार पानी की बोतल थी, जो अब उस पर उंडेल चुकी थी। अचानक से ठंडे पानी की फवार अपने ऊपर गिरने पर वो कपकपाई थी। फॉक्सी ने झुककर उसके चेहरे पर चिपके हुए बालों को हटाया था। उसके चेहरे पर तकलीफ दे तासुरात ज़ाहिर हुए। चेहरे पर गहरे जख्म के निशानात थे। हिबा ने तकलीफ के बायस आंखें मींची। फॉक्सी के लब स्याह मांस के हाले में मुस्कुराए। खुश आमदीद डार्लिंग। फॉक्सी की मक्कार आवाज़ उसके कान में गूंजी तो उसने आहिस्ता से हत्तुल मकदूर आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन रोशनी के बायस उसकी आंखें नहीं खुल सकी थी, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो आंखें खोल देगी तो शायद अपनी बिनाई खो दे। हेबा डार्लिंग, बदमी करो अब अपने ड्रामे। बस बहुत हुआ। उसने चारों नाचार आंखें खोली और अपने इतराफ का जायजा लेने लगी। दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की तो उसे याद आया कि वो फजर के साथ शॉपिंग मॉल गई थी और वहाँ दो आदमी आए थे जो फॉक्सी ने भेजे थे। इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी यादात से मिट चुका था। तुम सोच रही होगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये तो प्लान का हिस्सा नहीं था, वगैरह वगैरह। चलो मैं तुम्हें आसानी कर देती हूँ। बॉस के सामने अपना चेहरा किए घुटनों के बल बैठी, जो अभी तक पूरे कमरे में नजर फेर रही थी। तब उसने स्याह मास्क वाली लड़की को अपनी तरफ नजर गाड़े देखा, जिसकी आंखों में अलवही चमक थी। मैं बहुत मुश्किल से लोगों पर भरोसा करती हूँ। मुझे जो नफ्स अपने भरोसे के काबिल लगता है, वही मेरी स्याह दुनिया की ज़िंदगी में कदम रख सकता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है हिब्बा डार्लिंग, कि मुझे तुम पर अंगूठे के इंच जितना भी भरोसा नहीं। क्यों? बताती हूँ। एक पल को मुस्कुराई, फिर उठ खड़ी हुई और इस कमरे के गेट चक्कर काटने लगी। हिब्बा की आंखें उसे यहाँ से वहाँ टहलते देखने लगी। वो उस लड़की से पहली बार मिल रही थी। अंदर ही अंदर उसके दिल में एक अजीब खौफ भी बरपा था, क्योंकि थोड़ी बहुत सही सही क्योंकि थोड़ी बहुत सही, लेकिन वो फॉक्सी की शख्सियत से वाकिफ थी। वो जानती थी कि अपना काम निकाल लेने के बाद इस इंसान का क्या अंजाम करती थी। तो मुझे काफ़ी डरपोक लगी। जैसे तुम बार बार उस पुलिस वाले की बात कर रही थी ना, मुझे बखूबी अंदाज़ा हो गया कि तुम एक बुज़दिल और बेकार लड़की हो। उसने पल भर को रुककर सांस बहाल की। इसीलिए तो मैंने तुम्हें इल्म में लाए बगैर तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, जिसमें मैं भरपूर कामयाब हो चुकी हूँ। तुम वो लड़की हो जिसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, क्योंकि तुम दिमाग से नहीं सोचती, बस जो लोग कहें उसी पर अमल पैरा करती हो। जैसे मेरे कहने पर। मैंने तो बस थोड़ी सी मेहनत की तुम पर, और तुम फौरन। अपनी बात के अख्ताम पर वो हंसी थी। अब उसके सामने खड़ी हिबा आंखों में हैरानी लिए उसकी बातें सुनने लगी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे सरेआम किसी ने उसके ऊपर कीचड़ उछाल दी। अगर आपकी नज़र में मैं एक बेवकूफ़ हूँ तो आपने मेरे साथ काम क्यों किया? हिबा की नज़रों में गहरा दुख था। वो अपनी तकलीफ़ों को दबाए उससे हमतन गोश थी। फॉक्सी उसकी आंखों में देखकर जोर जोर से हंसने लगी। मैंने तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि तुमने मेरे साथ काम किया है। हिबा उसकी बात नहीं समझी थी। क्या मतलब है आपका? वो आंखें मुकम्मल खोले देखने लगी थी। तुम ज़्यादा दिमाग मत लड़ाओ, क्योंकि समझोगी तो वैसे भी नहीं। ये कहते हुए उसके सामने से हट रही थी, तब हिबा बोल उठी। आपने फजर के साथ क्या किया? हिबा को इस अचानक से फजर का ख्याल आ गया था। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि किसी की बातों में आकर उसने इस मासूम सी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की थी। पहले उसके कुल असासे को उससे छीना, फिर उसके चेहरे पर रवानी से आंसू बहने लगे थे। हिबा एक संगीन गलती कर चुकी थी, जिसका अंदाज़ा काफ़ी वक्त बाद हुआ था। किसी इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वह फॉक्सी से सवाल पूछे। तुमने पूछ लिया है, इसीलिए दरगुजर कर रही हूँ। रही उस लड़की की बात, तो वो मेरा सबसे अजीज शिकार है। अभी वो बच गई तो क्या हुआ? आगे जाकर और भी बहुत से ऐसे मौके आएंगे, जिसमें हमेशा की तरह मैं सखरू होंगी। किसी न किसी दिन उसे मेरे पास आना होगा। तब उसे पाकर मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मैं अपनी फतह हासिल कर चुकी हूँ।
वो मुड़े बगैर बोली। उस लड़की के जिक्र पर उसके लबों पर मायने खिल मुस्कुराहट नमदार हुई थी। हिबा को उसकी आवाज़ में इस मुस्कुराहट की झलक महसूस हुई। फॉक्सी ने अपना रुख हिबा की जानिब किया और उसकी आंखों में देखने लगी। हिबा डार्लिंग, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ है। मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हें पसंद आएगा। ये कहते उसने हिबा के ऊपर नजरें जमाई, अपना मास्क उतारा। हिबा की आंखें और उस चेहरे को देखते ही खुल गई थी। उसके ऊपर एकदम सख्ता तारी हुआ, आंखें खुलकर और बड़ी होने लगी। अभी वो कुछ कहने ही लगी थी कि उस वक्त अपने जिस्म से आग मचलती महसूस हुई। उसने हैरान आंखें लिए अपने पेट की जानिब देखा, जहाँ से खून रिसकर जमीन पर टपक रहा था। उसने अपनी आंखों का रुख फॉक्सी की जानिब करना चाहा, लेकिन इस वक्त उसके इर्द गिर्द अंधेरा फैल गया। उसकी आंखें ऊपर को होने लगी। उसको अपने जिस्म से कोई चीज़ निकलती महसूस हुई। फॉक्सी उसके बगैर फॉक्सी उसकी तरफ बगैर मास्क के देखती हंस रही थी। जो भी फॉक्सी की जिंदगी में आया है, उसने मौत का जायका जरूर चखा है। वो हिबा के साकित वजूद को देखते उसके लहू में अपने हाथ डबोए बड़बड़ाई थी। बाहर आकर एक पहरेदार को मुखातिब किया। अंदर मौजूद लाश को झाड़ियों में छुपा दो और इस तरह छुपाओ कि कोई कूड़े का ढेर समझकर चला जाए। किसी को शक नहीं होना चाहिए। वो सर झुकाए कमरे के अंदर चला गया, जबकि फॉक्सी खुली आबो हवा में मुस्कुराने लगी थी। तुम्हें एक ना दिन मेरे पास तो आना ही है फजर जुल्फ़िकार। फिर मैं देखूंगी कि कौन आता है तुम्हें बचाने के लिए। बाप पंचम, खून से गाढ़ा। अंधेरी रातों में जब जुगनू चमका करते, तब मैं धीमे पाँव चलता हूँ। कहीं अंदर दिल के किसी कोने में मैं जमकर बैठा करता हूँ। तुम डरने लगे हो मुझसे अब? क्यों इतना भयानक लगता हूँ? मैं ख्वाब ही तो हूँ तुम्हारा। मुझसे क्यों तुम डरते हो? इस ख्वाब में एक कुआं हूँ मैं। तुम प्यासे हो। मंजिल मैं तुम्हें क्यों लगता हूँ? पर क्या है जो तुम रोके हुए हो? क्या कांटे हैं मेरी चारों ओर? इनमें लेप नफरत और बगावत की, कुछ गद्दारी और सफाकियत की, कुछ धोखे की, कुछ बेतबारी की। तुम इन पर चलकर आओ तुम, और देखो तुम तो आ ही गए। क्यों तकलीफ है तुम्हारे चेहरे पर? शायद पाँव तुम्हारे जख्मी है। कुछ खून सा गाढ़ा रिस रहा है। हाँ, शायद वो खून ही है। तुम मुझ में जैसे झांको तो मैं सूखा हूँ, मैं खाली हूँ। और तुम मुझसे डरते यूं हो क्योंकि मैं तुम्हारी अकासी हूँ। रात ने स्याही इर्द गिर्द फैला रखी थी, ऐसी स्याही जो हमेशा गुनाहों का सबब बनती है। दूर घने जंगल में से जंगली जानवरों के गुराने की आवाज़ आसानी से उसकी समात में सुनाई दे रही थी। फॉक्सी अपने काम को सरअंजाम दिए वहां से निकली थी। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो उसका आदमी अब लाश झाड़ियों में छुपा रहा था। वो कुछ पल ठहर कर देखने लगी। जब आदमी चला गया तो उसने अपना रुख झाड़ियों की तरफ किया। जमीन पर बिखरे पत्तों पर स्याह बूट रखे तो पत्ते शोर का बायस बने थे। मास्क से चेहरे को मुकम्मल ढांपा और फिर उस लाश से कुछ फासले पर बैठी। तभी उसे खुद पर किसी की गहरी नज़रों का इत्तेकास महसूस हुआ। उसने अपने खून आलूद पॉकेट नाइफ पर गिरफ्त मजबूत कर ली थी और कुछ देर रुककर आंखें बंद किए अपनी तरफ आते कदमों की चाप सुनने लगी थी। एक, दो, तीन कदम गिने और इस वक्त वो आवाज़ उसे कुछ फासले पर आकर रुक गई थी। उसने मुड़कर देखा तो पीछे कोई ना था, लेकिन इस तरह उसकी तसल्ली ना हुई थी। अंदर ही अंदर उसे अब भी लग रहा था कि जैसे कोई इस पर नजरें गाड़े हुए हैं। वो उठकर 3 कदम के फासले पर चलती पीछे को आई और फिर खारदार झाड़ियों के बीच बैठकर अपने ताकुबकार को तलाश करने लगी। कोई होता तो शायद अब तक मिल चुका होता, लेकिन मालूम होता था कि वहाँ कोई नहीं। उसने सर सांस भरी और खड़ी हो गई। उसके कदम अब सफ़ेद इमारत की जानिब थे। हाथ में चाकू अब भी किसी हीरे की माने चमक रहा था। कुछ ही सातें गुजरी थीं तो वो सफ़ेद इमारत के वसत में बैठी खून में लदा चाकू रुमाल से साफ कर रही थी। तभी उसकी अकब से आवाज़ गूंजी, अब किसको मौत के घाट उतार कर आई हूँ? तुम रात के इस वक्त। उनकी आवाज़ में तंज का आंसर नुमाया था। फॉक्सी ने अपना काम अधूरा छोड़कर सर्द निगाहों से उन्हें देखा, जो उसके सामने आकर बैठे थे। चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट सजाई थी। आप अपने काम से काम रखें, क्योंकि फॉक्सी को पसंद नहीं कि कोई इंसान उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करे। ये कहते ही वह वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गई। सिराज ने लब भींच कर कुछ पल उसे देखा था। मैं काम से काम तब रखूंगा जब तुम मुझे अपने राजों में शामिल करोगी। आंखों में शोले भड़कने लगे थे। मैंने 1000 दफ़ा कहा है कि अब भी कह रही हूँ, फॉक्सी अपने किसी राज को नहीं बताती। सिराज उसकी बात पर हंसे थे। ठीक है, मत बताओ। कभी ना कभी तो मुझे पता चल ही जाएगा। और ये बिल्कुल मत समझना कि जो बातें तुम मुझसे छुपा रही हो वो मेरे इल्म में नहीं। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मेरे इल्म में सब कुछ है। बस मैं तुम्हारे सामने इन सब को ज़ाहिर नहीं करना चाहता। सिराज उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उनके कानों में फॉक्सी की आवाज़ सुनाई दी। क्या है आपके इल्म में? ज़रा मुझे भी बताएं, मैं जानना चाहती हूँ। उन्होंने पीछे देखा तो वो उसके सामने सीने पर बाजू फैलाए आंखें उस पर जमाए हुए थे। मुझे मालूम हो गया है कि तुम किसके लिए सब कर रही हो।
पॉक्सी दिल खोलकर हंसी, फिर सर झटका। मेरे बारे में ज्यादा बात मत करें। आप अपने आप पर तवज्जो दें, क्योंकि अगर आपने बरसों पहले खुद पर तवज्जो दी होती तो शायद आज मेरे सामने खड़े होकर मुझसे मेरे राजों के बारे में ना पूछते। वो ये कहते जाने लगी, तभी उसके रास्ते में सिराज आए थे। मुझे मालूम था कि तुम यही जवाब दोगी। मैं बिल्कुल सही कहता हूँ, तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह हो। वो भी इसी तरह के जवाबात देता है जिसे सुनकर लोग पल भर को अपने अल्फाज ही भूल जाएं। उनके चेहरे से शदीद गुस्से की रमक महसूस हो रही थी। चेहरा सुर्ख हो रहा था। फॉक्सी ने सर लहजा अपनाया। मुझे उस इंसान से बिल्कुल भी ना मिलाया करें। मैं कभी भी उन जैसी नहीं बन सकती। चेहरे पर तकलीफ दे आसार नमूदार हुए, मगर वो अपने एहसासात को छुपाना जानती थी। उन्हें अपनी जगह छोड़ते वो अपने कमरे में तन करती चली गई थी। पीछे खड़े सिराज मुट्ठी नीचे उसे जाते देखते रहे। कमरे में दाखिल होते ही अंधेरे में स्विच बोर्ड को तलाशा और फिर तमाम बत्तियां एक के बाद एक जलाती गई। अमूमन हर लड़की के कमरे में आपको सजे फूल नजर आते हैं, मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे फूलों से लगाव ना था। उसे इन फूलों से लगे कांटे पसंद थे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में बस कांटे ही थे। अलमारी की तरफ रुख किया और अपने हाथ में दबी उन आलू छुरी को लॉकर में रखने लगी थी। छुरी को लॉकर के अंदरूनी हिस्से में रखा, तभी उसका हाथ लगने पर यह एक चीज़ पैरों में गिरी थी। फॉक्सी ने अपनी नज़रें उसकी जानिब की तो एक तस्वीर थी जो उल्टी पड़ी थी। झुककर वो उठा ली और सीधी की। उसे मालूम था ये तस्वीर किसकी थी। जहन के पर्दों पर एक करीबी चेहरे को उजागर किया। कमरे की रोशनी में झलकते इस चेहरे पर नजरें की तो कई तकलीफ के आसार नमदार हुए थे, जैसे बहुत सारे जख्म कुरेद दिए गए हों। आहिस्तगी से तस्वीर का रुख अपनी जानिब किया, जिस पर दो नफीस चेहरे नजर आ रहे थे। एक दूसरे के गले में हाथ डाले मुस्कुराते चेहरे। आंखों में आंसू बना लेती आंखों में आंसू ने बना लेनी चाहिए, मगर उसकी इजाज़त ना मिली थी। एक मंजर उसकी आंखों के सामने उभरने लगा। खुद को इसकी भूल भुलैयों में खोने लगी थी। सफ़ेद इमारत में आज खूब गहमा गहमी थी। हर जानिब लोगों का जमे गफीर था। यहाँ कोई तकरीब थी जिसके बायस शोर था। लोग हाथों में एक मशरूब थामे वक्फे वक्फे से घूंट भर रहे थे। उनके सामने ही स्याह सूट में मलबूस सब लोगों से बारी बारी मिल रहे थे। वो आज की मुनासबत से काफ़ी बदले हुए देखने को मिल रहे थे। सफ़ेद बाल जो उनका कुल सासा थे उस वक्त अनका थे। जिसामत भी ठीक थी। उन्हें वहीं छोड़कर कुछ फासले पर नस्ब टेबल पर नजरें करें, जिस पर अनवा इकसाम के तहाइफ रखे थे। उसके साथ ही 16 साल लड़की अपना ज़मीन पर फैलता हुआ स्याह गाउन संभाले इधर उधर नजरें घुमा रही थी, यकीनन अपने बाप को तलाश कर रही थी। ठीक उसी पल उसकी नज़र अपने बाप पर पड़ी, जो उसकी तरफ ही आ रहे थे। मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है आज। झुककर उसके फूले गालों पर प्यार किया तो लड़की कसमसा कर दूर हुई और चेहरे पर अजीब तासुरात बनने लगे। इस वाक़ये के बाद वो कुछ दूर दूर रहने लगी थी। बॉस ने बखूबी उसके चेहरे को देखा, मगर कुछ कहा नहीं। इसी इस्ना में सफ़ेद शलवार कमीज पहने सिराज उन दोनों की तरफ आए और झुककर बॉस के कान में कुछ कहा था। जिसका इंतजार था वो यहाँ मौजूद है, आपसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है। बॉस के होठों पर एक जानदार सी हंसी उजागर हुई। इनसे कहो मैं जल्दी उनसे मिलूंगा, और साथ ये भी बोल दो कि मेरे पास उनके लिए कुछ खास है। सिराज ने सर को खम दिया और चलते बने। बॉस ने अपनी तवज्जो अपने सामने खड़ी बेटी की तरफ रवां की थी। क्या कल तुम मेरे साथ चलोगी? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लड़की की आंखों में चमक के साथ साथ सवाल उभरा था। वो ठहराव जो दोनों बाप बेटी के बीच में था वो आहिस्ता आहिस्ता हटने लगा था। कौन सा सरप्राइज बाबा जान? अपनी बेटी की जल्दबाजी पर वो आदमी मुस्कुराया, फिर उसकी स्याह आंखों में अपने अक्स को देखते बोला, वो मैं कल बताऊंगा। तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। चलोगी मेरे साथ? उस लड़की ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। जी बाबा जान, मैं ज़रूर चलूंगी आपके साथ। पहले जो तासुरात उसके चेहरे पर थे वो गायब हो चुके थे। उनकी जगह खुशी ने ले ली थी, जो बस उसके बाप की वजह से आई थी। उसकी बात पर बॉस मुस्कुराकर सीधे हुए। उनकी आंखों में एक अलग जहां आबाद था। कल एक जिंदगी ने बदल जाना था जिसका बस उन्हीं को ही इल्म था। मंजर के ऊपर सफ़ेद बर्फ जैसी धुंध छाने लगी। उस वक्त एक और मंजर जो अपने वजूद में रंग भरने लगा था। वो लड़की अपने बाप की उंगली थामे बगैर किसी परेशानी के साथ चल रही थी। उसे अपने कानों में बहुत सी आवाज़ें सुनने को मिल रही थी, जैसे कोई लड़की अपनी ज़िंदगी के लिए बख्शिश मांग रही हो, तो दूसरी अपना सब कुछ लूटते खामोशी से देख रही हो। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है मेरी इज्जत नीलाम मत करो। मेरे घर वाले मेरी रात तक रहे होंगे। प्लीज़ मुझे जाने दो। इस तरह की कई आवाज़ें थीं जो उसकी समात में गूंज रही होंगी। यहाँ का माहौल अजीब था, ये शायद उसे महसूस हुआ था। वो समझ ना सकी। अपने चेहरे के तासुरात कमाल महारत से छुपाए वो बाप के साथ चलने लगी। उन दोनों के साथ सिराज भी थे। वो कुछ लाइलमी से दोनों बाप बेटी को देख रहे थे। वो बार बार अपनी जुबान पर मचलते सवाल को बाहर आने से बाज रखते, मगर कब तक? लड़की से नज़र हटाकर बॉस को देखा, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तुम यही पूछना चाह रहे हो ना सिराज, कि मैं अपनी बेटी को किस वजह से यहाँ लाया? सिराज ने हाथ तस्लीम करते सर झुका लिया। बॉस उसकी रख रख से वाकिफ थे। आखिर
जानना ही था कि वो क्या पूछना चाह रहे। बॉस सिराज की हालत देखते हंसने लगे। तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा। लड़की ने अपने बाप की जानिब आंखों में सवाल लिए देखा था। बाबा जान, ये कौन सी जगह है और ये लड़कियां क्यों रो रही हैं? बॉस घुटने के बल बैठे और फिर उसके हाथ थामे। अब वक्त आ चुका है कि वो अपना असल चेहरा बेटी को दिखाए। वो चेहरा जो स्याह था, वो चेहरा जो सपाक था। ये वो जगह जहाँ अब तुम्हारा राज होगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। और उन्हें दूसरे सवाल का जवाब देना मुनासिब ना समझा। इसे उनकी एक भी बात समझ नहीं आई थी। बॉस खड़े हुए, फिर उसके सामने हाथ फैलाया। चलो मेरे साथ, तुम्हारा सरप्राइज अंदर खास तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो लड़की बगैर चूं चरा किए डरी सहमी अपने बाप के साथ कदम कदम मिलाकर चलने लगी। अंदर जाकर एक अलग ही मंजर उसकी स्याह आंखों में देखा था। अंदर कमरे में एक लाश की वजह से खून से गाढ़ा माया फैला हुआ था। लाश लड़की की थी जिसकी आंखें ऊपर को उठी थी। फॉक्सी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने देखा खून उसके जिस्म के हिस्से हिस्से से रिस कर जमीन पर फैल रहा था। चेहरे पर डर वाज़ेह था। वो लाश को देखती ही कुछ कदम दूर हो गई। आंखों में हैरत लिए बॉस की तरफ देखा। वो उसे ही देख रहे थे। उनकी आंखों में फतह हासिल कर लेने की चमक थी। निगाहों का रुख सिराज की जानिब किया जो सर झुकाए खड़े थे। नज़र दोबारा लाश की तरफ गामजन थी। आंखें उस मंजर को देखने से गुरेज कर रही थी, मगर फिर भी बार बार वो देख रही थी। जिस्म कपकपाहट का शिकार हुआ, लर्जिश पैदा हुई, उसे बेख्तियार किया आई थी। शदीद चक्कर आए, आंखों के गिर्द स्याही फैलने लगी थी। कमरे के चारों तरफ लड़कियां रोने का शोल तनासुब फरमा रही थी। उसने यहाँ खड़ा होना उसे यहाँ खड़ा होना दोबर हो गया था और बेख्तियार वो होश की दुनिया से गाफिल हो गई। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो खुद को अपने नर्म मुलायम पलंग पर पाया था। कुछ फासले पर ही बॉस उसके बालों में हाथ दिए बैठे थे। उसे होश की दुनिया में आते देखा तो कहा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी डरपोक निकलोगी। फॉक्सी ने उनकी आंखों में देखना चाहा, मगर उनकी आंखों में कुछ ऐसा था कि जिसकी ताब वो न ला सकी थी। बॉस बोलते रहे, आज से तुम्हें मजबूत होना होगा, इतना मजबूत कि कोई तुम्हें तोड़ने की लाख कोशिश करे लेकिन तुम टूट ना सको। वो करीब हुई तो फॉक्सी डर के मारे दूर हुई। बॉस ने एक बार फिर उसका यूं दूर होना दरगुजर किया था। यही था तुम्हारे लिए सरप्राइज। मुझे मालूम है कि ये माहौल तुम्हारे लिए भी नया नया है, लेकिन फिक्र मत करो, वक्त के साथ साथ इसकी आदी हो जाओगी। इस यहाँ आंखों वाली लड़की के चेहरे पर वाज़ेह डर था। आज पहली बार उसने अपने बाप को करीब से जाना था। उसे लगा वो आज पहली बार उनसे मिल रही है। वो इंसान जो बरसों से उनके साथ रहता आ रहा था, वो तो कोई और ही था। तुम वो चेहरा बनोगी जिससे लोग डरेंगे। उनके बदले में तुम्हें वो ताकत मिलेगी उनके बदले में तुम्हें वो ताकत मिलेगी जो तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा। मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा और उठ खड़े हुए। अपने बाप का नया रूप देखकर उस लड़की की सांसें बंद होने के मुतरादिफ थीं। जुबान तालू से चिपक गई थी और वो कुछ बोला ही नहीं गया। जबरदस्ती लब जुदा किए। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। बॉस पीछे मुड़े, चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट सजाई और कदम कदम उसकी जाने बढ़े। पूछ सकता हूँ क्यों? उनके लहजे में झलकता प्यार कहीं जा सोया था। वहां आप सफाकी थी। मैं किसी मासूम की जान क्यों लूं? बॉस कुछ पल ऐसे ही खड़े रहे, फिर पलंग पर बैठे। ये दुनिया और इसमें बसे लोग बहुत जालिम हैं। तुम्हें इस जुल्म का सामना करने के लिए मेरी बात मानना होगी। उसके गाल पर हाथ रखा तो कुछ गर्म महसूस हुआ। उसे बुखार था। फॉक्सी ने उनका हाथ झटका और एक ही जश्न में पलंग से उठी। मैंने कहा ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। आपको समझ नहीं आ रही? दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मालूम होता था कि अभी पसली तोड़कर बाहर आ जाएगा। बॉस चुपचाप उसे देखते रहे, फिर उठकर उसके सामने घुटनों के बल बैठी। मेरी जान, तुम अपने बाबा की इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। तुम बस नाम की मोहब्बत करती हो मुझसे। फॉक्सी कुछ पल जामिद बगैर किसी हरकत और साकित नज़रों से उन्हें देखे गई। बॉस ने धीरे से उसके नरम बालों को में हाथ फेरा था, फिर आहिस्ता से पलंग पर बिठाया। तुम्हारी खामोशी से बहुत कुछ अखज़ किया जा सकता। इससे पहले मैं किसी नतीजे पर पहुंचूं तुम्हें जवाब देना होगा। आहिस्तगी से गिरफ्त सर्द हुई थी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती हो। फिर भी अगर तुम्हारा जवाब मेरी मर्जी का ना हुआ तो हो सकता है कि कुछ कर गुजरूं। फॉक्सी के वजूद में हरकत पैदा हुई। वो चेहरा तारीक हुआ। खौफज़दा नज़रों से बाप को देखा। मैं आपकी किसी बातों में नहीं आने वाली। जो करना है कर लें। खुद को उनसे छुड़वाया और धक धक करते दिल के साथ दूर हुई थी। बॉस खड़े हुए और इसे आंखों में देखा था। अपनी बात कैसे मनवानी है मैं अच्छे से जानता हूँ। बॉस ने अल्फाज कहे और उसके कमरे से तो क्या घर से ही चले गए। कमरे में मौजूद लड़की के चेहरे पर नमी फैली। बेख्तियार जान से प्यारा कोई याद आया था। अलमारी की जानिब कदम बढ़ाए, बट आपस में जुदा किए, फिर अंदर से फ्रेम निकालकर आंखों के सामने कर लिया। आंखों से स्याल रफ्तार की सूरत बहने लगा था। क्यों इतनी जल्दी किया आपने जाने में? मेरे बारे में कुछ तो सोचा होता। मैं आपकी कमी शिद्दत से महसूस कर रही। तस्वीर को आंखों से लगाए ठंडक देने की कोशिश की। लब हिलते रहे। बाबा, मुझे वो इंसान बनाना चाहते हैं जो मैं नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं बनना चाहती। उन्होंने मुझे कहा कि वो अपनी हर बात मनवाना जानते हैं। मैं डर रही हूँ कहीं कुछ गलत ना हो जाए।
وہ اپنی محبت میں کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں عام لڑکی سے ہٹ کر پتھر کی مورت بن جاؤں۔ آنکھوں سے ہٹا کر تصویر پر ہاتھ پھیرا، دل ٹوٹ کر کئی حصوں میں تقسیم ہوا۔ آنسو صاف کیے پھر وہ فریم پکڑے پلنگ پر بیٹھ گئی تھی۔ 2 دن بعد وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی کنگھی کرنے میں مگن تھی جب دروازہ کھلا اور ایک معمر عورت کا عکس نمایاں ہوا۔ باس آپ سے ملنے آئے ہیں بیوی، وہ نیچے لاؤنج میں آپ کی راہ تک رہے ہیں۔ فاکسی نے آئینے میں اس عورت کو دیکھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ میں آتی ہوں۔ وہ عورت سر ہلاتے چلی گئی۔ لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے ہی باس 4 رنگ کے صوفے پر پشت پر ہاتھ رکھ کے ٹانگ پر ٹانگ جمائے اخبار پڑھنے میں مشغول تھے۔ قدموں کی آہٹ پر متوجہ ہوئے تو فاکسی بغیر کسی حرکت کے انہیں دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ کتھئی رنگ کی گدیاں صوفے کی پشت پر جمی تھیں اور سامنے ٹیبل پر ہی چائے کا مگ رکھا تھا۔ ان کی پشت پر ہی پینٹنگ ٹنگی تھی جس میں فاکسی کو اپنا عکس بآسانی نظر آ رہا تھا۔ باس نے اخبار طے کر کے کانچ کی میز پر دھرا اور مکمل یکسوئی سے مخاطب ہوئے، کیسی ہو؟ فاکسی چپ چاپ کھڑی رہی۔ وہ کچھ دیر خاموشی کا البادہ اوڑے بیٹھے رہے۔ کیا تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو؟ وہ سرد نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ باس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میں مانتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے کہا یا کیا وہ سب غلط ہے، مگر یقین کرو کہ اسی میں تمہاری بقا ہے۔ اسی لیے جتنا جلدی ہو سکے میری بات کو سمجھو اور مانو۔ انداز میں تھوڑا فرق پیدا ہوا۔ کچھ بولنے کے لیے لب کھولے مگر آنکھوں کا تاثر سرد ہی رہا۔ میں کیوں سمجھوں آپ کی بات؟ اس سے مجھے کیا ملے گا؟ باس نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی۔ کچھ سوچتے اس کی طرف آئے، شفاق انداز میں اس کے گرد گول چکر کاٹنے لگے۔ تمہیں سمجھنا ہوگا، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ ان کی آواز میں ٹھہراؤ تھا مگر الفاظ میں کاٹ۔ تمہارے پاس دماغ ہے، کشش ہے، وقت آ گیا ہے کہ تم انہیں صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ یہ دنیا رحم دل لوگوں کی نہیں، طاقتور لوگوں کی ہے۔ فاکسی نے سینے پر ہاتھ باندھے سوال کیا۔ مجھے اس سے کیا ملے گا؟ باس رکے اور دیوار پر نصب پینٹنگ کو دیکھا۔ وہ جس کی تمہیں ضرورت ہے، اشد ضرورت، شہرت، رتبہ۔ فاکسی طنزیہ انداز میں مسکرائی تھی۔ نہ مجھے شہرت کی تمنا ہے نہ ہی کسی رتبے کی، اسی لیے میرا جواب تو وہی ہے جو پہلے تھا۔ باس نے رخ اس کی طرف کیا اور سینے پر ہاتھ باندھے۔ تو ٹھیک ہے، پھر مجھے اس پر عمل کرنا ہوگا جو میں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ کرتا آیا۔ فاکسی ان کی بات سمجھ نہ سکی تھی۔ ابرو سوالی انداز میں اٹھائے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ باس کی نگاہیں اسی پر جمی تھیں۔ فاکسی کی سانس بند ہونے لگی۔ اس کا باپ کیا کرنے والا تھا؟ اس سے وہ یکسر انجان تھی۔ بندوں کو لے آؤ سراج۔ فاکسی لبوا کی اپنے باپ کے بدلتے تاثرات کو دیکھنے لگی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے پیچھے کی طرف ہوئی۔ چہرے پر خوف براجمان تھا۔ آنکھیں اس منظر کو دیکھنے سے انکاری تھیں۔ اسی وقت 2 مردوں کے ساتھ سراج اندر آئے تھے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ زور زبردستی نہیں ہو سکتی۔ سراج باس کے ساتھ کھڑے ہوئے جبکہ وہ 2 مرد اس کی طرف قدم بڑھانے لگے تھے۔ باس مسکرائے پھر ہاتھ اٹھا کر ان مردوں کو وہیں تھم جانے کو کہا۔ فاکسی ہراساں نظروں سے ان کو دیکھنے لگی۔ جانا تو تمہیں ہوگا ہی، اب پیار سے چلو یا پھر؟ وہ آپ دیدہ نظروں سے دیکھے گئی۔ یہ انسان قطعاً اس کا باپ نہیں ہو سکتا تھا۔ باپ ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، وہ جان بوجھ کر اپنی اولادوں کو آگ میں تھوڑی جھونکتے ہیں۔ بہت نرمی برت لی ہم نے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تم کیونکہ تم بھی اسی طرح سیدھی سادی ایک بات مانتی نہیں ہو، انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ وہ قدم قدم اس کی طرف آئے پھر کچھ فاصلے پر ہی رک گئے تھے۔ میں نے کہا نا کہ مجھے کہیں نہیں جانا، آپ انہیں واپس بھیجیں۔ چیختے ہوئے گلے میں خراشیں پڑیں اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے مگر سامنے والے کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہاتھ سے ان 2 مردوں کو آگے آنے کا اشارہ کیا، پھر وہ الٹے قدم واپس اپنی جگہ پر بیٹھے۔ دونوں مردوں نے فاکسی کو اپنے شکنجے میں لے لیا تھا۔ وہ خود کو چھڑانے کی تگ و دو کرنے لگی۔ مجھے چھوڑیں، مجھے چھوڑیں۔ اسی پل آدمی نے کوئی زوردار چیز اس کے سر پر ماری جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر اس کا وجود گھسیٹتے اسے لے گئے تھے۔ باس خاموشی سے دیکھتے رہے۔ انہیں تکلیف ہوئی تھی مگر نظر انداز کر گئے۔ ضمیر نے ملامت کی مگر وہ آواز کو آنکھیں بند کیے جھٹلاتے رہے۔ گزشتہ دن سے جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں ارد گرد سے اٹھتے شور کو فراموش کیے وہ انہی مناظرات سے گزرنے لگی۔ الفاظ آج بھی کسی شور کی طرح کانوں میں چبھ رہے تھے۔ مجھے چھوڑیں، مجھے چھوڑیں۔ تم وہ چہرہ بنو گی جسے لوگ ڈریں گے اور بدلے میں تمہیں وہ طاقت ملے گی جو کوئی چھین نہیں سکے گا۔ وہ ان لفظوں کے جال سے جان چھڑانا چاہتی تھی مگر یہ ناممکن تھا۔ کانوں پر ہاتھ رکھنا چاہا مگر وہ کسی مضبوط زنجیر سے بندھے تھے۔ یہ دنیا اور اس میں بسے لوگ بہت ظالم ہیں۔ تمہیں اس ظلم کا سامنا کرنے کے لیے میری بات ماننی ہوگی۔ بند آنکھوں سے بڑبڑاتے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ مجھے بخش دیں، میری زندگی برباد ہو جائے گی، خدارا مجھے بخش دیں۔ وہی منظر ذہن کے پردوں پر گھوما جس دن وہ پہلی بار اپنے باپ کے کاروبار سے آشنا ہوئی تھی۔ باپ کی انگلی تھامے بغیر کسی فکر کے ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ ان کے ساتھ وہی آدمی تھا جسے وہ ہمیشہ اپنے باپ کا دوست سمجھتی رہی تھی مگر اس کا کاروبار میں
ان का शरीक दार था। मंजर बदला। वो अब कमरे में थी जहाँ एक लड़की की लाश थी, आंखें ऊपर कोटी थी और ज़मीन पर फैलता खून झुरझुरी हुई थी। तबीयत बिगड़ने लगी। मंजर छटा तो आहिस्ता आहिस्ता वो हाल की सरहदों को अबूर करने लगी। आवाज़ बहाल हुए तो जगह अनजानी थी। इस जगह से वो अखज़ ना कर सकी कि कहाँ है। बेकार बेख्तियार ही कान में बराबर में पड़ी पड़ी लड़की की दर्द भरी आवाज़ गूंजी थी। इस तरफ देखा तो उसकी आंखों से स्याल बहकर चेहरे को भिगो रहा था। मुझे मुझे छोड़ो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझे यहाँ लाए हो? आवाज़ में दर्द ही दर्द था। वो लड़की को चुप करवाना चाह रही थी, कोई तसल्ली के बोल थमाना चाहती थी, पर दिल के हजार बार कहने के बावजूद भी ऐसा ना कर सकी थी। चुपती सूरज की किरणों ने उसके चेहरे पर रुख किया तो तासुरात अजीब थे। आंख से आंसू सिरक कर जमीन बोस हुआ, फिर जमीन पर बिछे इसके हाथ से गिरकर जज्ब हो गया था। बैठे बैठे यूं ही एक बार फिर गनूदगी चेहरे पर हाई हुई। तभी वो दुनिया से कब गाफिल हुई पता ही ना चला। कुछ देर बाद उसे कंधे पर दबाव महसूस हुआ। मुदी मुदी आंखें वाक की थी, फिर भरे जिस्म वाले आदमी ने पहले जंजीर से हाथ आजाद किए, फिर जोर देते उठाया था। इस तरह उठाए जाने पर जिस्म के अंग अंग में दर्द जागा था। तकलीफ से आंखें मीची, लब जबरदस्ती बेबस किए। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रही? खुद को छुड़वाने की सरतोड़ कोशिश की। वो उसके साथ जाना नहीं चाह रही थी, मगर आदमी ले जा रहा था। कमरे में कदम धरते सिगरेट के धुएं ने उसका इस्तकबाल किया था। सिगरेट की बू नथनों में घुसी, बेख्तियार जोर से खांसने लगी। ये उसका वही कमरा था जो आजकल इस्तेमाल में था। चारों तरफ कमरे के कोने पर नजर डाली, फिर कुर्सी पर टांग जमाए, लबों को मुस्कुराहट में ढाले, हाथ में ढहकती सिगरेट पकड़े एक सुई से उसे देखते बॉस नजर आए थे। आओ आओ, कब से तुम्हारा ही इंतजार था। उसके जख्मी शुदा चेहरे को देखते मुस्कुराहट उनके लबों से जुदा ना हो रही थी। आदमी सर झुकाए हाथ पुश्त पर बांधे अगले हुक्म के इंतजार में खड़ा था। बॉस ने सिगरेट लबों से लगाया, फिर जुदा करते धुएं धुएं को हवा में छोड़ा और फिर गुस्से से उस आदमी को देखा। अब तो मेरा मुंह देखने क्या लग गई? जाओ यहाँ से और सबको कह दो कि कुछ देर हमें तंग ना किया जाए। वो आदमी सर झुकाए कदम कदम पीछे हुआ। बॉस की नज़र अपनी बेटी पर पड़ी, जो वैसे ही अपनी जगह पर जामिद रही। अरे तुम अभी तक खड़ी क्यों? आओ, आज से तुम्हारा ही ऑफिस है। वो अब वैसे ही सर्द नज़रों से उन्हें देखती रही। बॉस अपनी जगह से उठे, फिर पास आते उसके कंधे पकड़े। उनके हाथों में सख्ती थी। वो इन आंखों में देखने लगी जिनमें उनके लिए प्यार था, मगर आज इस प्यार की उसे ज़रूरत नहीं थी। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारा क्यों बुरा चाहूँगा मैं जो कर रहा हूँ उसमें तुम्हारी बेहतरी है। मेरे यकीन करो कि जब बुलंदियाँ तुम्हारे कदम चूमेगी तब तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहोगी। इसीलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज मुझे हाँ बोल दो। उसके चेहरे पर एकदम सरतासु नुमाया हो। शायद आप मेरा जवाब भूल रहे हैं। अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर नहीं तो बासानी मेरे अल्फाज आपको ज़हनशीन होंगे। मेरा जवाब आज भी वही है जो कुछ दिन पहले था। गुस्से से उनके सामने से हटी और वहाँ से जाने को मुड़ी, तभी कान में बॉस की सपाक आवाज़ गूंजी थी। मैं तुम्हें मलका बनाना चाहता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें मलका बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुम कैदी बनने पर बजित हो। इसीलिए आज से, बल्कि अभी से तुम वो जुल्म ढाया जाएगा जिसकी वजह से आज हम यहाँ पाए जाते हैं। वो उसके सामने आए, फिर जोर जोर से चिल्लाते अपने आदमी को आवाज़ दी थी। साबिर आओ और मैडम को कैदियों की तरह बेड़ियों में बांध दो। जब तक अकल ठिकाने ना आ जाए तब तक ऐसे ही रखना। मैं देखता हूँ कब तक ये ड्रामा चलता है। फॉक्सी हैरानी से अपने बाप को देखती रह गई। इस हद तक गिर जाएंगे उसकी तमन्ना उससे नहीं थी। कुछ ही सेकंड में वही आदमी जंजीर लिए कमरे में आया था और फिर जबरदस्ती उसे वो पहनाने लगा। बॉस एक बार फिर खामोशी से सब देखते रहे। आंखों में सर सा तासुर था। वो इस वक्त काल कोठरी नुमा कमरे में जमीन पर पड़ी थी, पैरों और हाथों में मजबूत जंजीरें थी। कमरा इतना बड़ा नहीं था, मुश्किल से दो तीन लोगों की जगह बन सकती थी, लेकिन फिलहाल सिर्फ वही थी। सर के ऊपर झुमती जट बत्ती ने उसके चेहरे पर रोशनी की तो उसकी बिखरी हालत वाज़ेह हुई थी। उलझे बाल, सूजे होंठ, गालों पर गहरे जख्म, आंखों के नीचे स्याह हल्के। सर एक तरफ को ढलकाए वो जमीन पर आड़ी तिरछी पड़ी, आंखें मुदे हुए थी। खून की बूंद नथनों में घुसती तो हालत खराब होने लगती। फिर वो पिछले 2 दिन से इस कमरे में बंद थी और तब से उसने सूरज की किरण नहीं देखी थी। वो 2 दिन से ना कुछ खाने की वजह से मतली सी महसूस हो रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने आंखें खोली और फिर भारी जिसामत वाला साबिर नामी आदमी अंदर आया था। करीब आने से मालूम हुआ कि उसके हाथ में एक स्याह कपड़ा था। वो करीब आया, फिर झुककर वो स्याह पट्टी उसकी आंखों के गिर्द बांधने लगा। फॉक्सी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? खोलो। अपने नाखून उसके हाथों में घोंपते, मगर साबिर को कोई फर्क ना पड़ा, जैसे वो कोई इंसान नहीं पत्थर हो। वो खामोशी से अपना काम सर अंजाम देने लगा। साबिर ने उसकी जंजीरें खोल दी, फिर खड़ा किया। मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझे तुम? वो चीखते चिल्लाते बोली, मगर साबिर नज़रअंदाज की उसे घसीटते ले जा रहा था। कुछ कदमों की मुसाफिर तय करने के बाद साबिर उसे कमरे में ले आया था।
पट्टी आंखों से हटाई गई, तभी वो कुछ देर आंखें मूंदे खड़ी रही। आहिस्ता आहिस्ता पलकें ऊपर को उठाई तो सामने का मंजर एक पल को उसका पूरा जिस्म बेजान कर गया था। आंखें साकित, लब वाह। उसकी आंखों में नजर आते अक्स की मदद से देखें तो जमीन पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। हालत काबिले मजम्मत नहीं थी। आंखों की जगह खाली थी। ऐसा लगता कि किसी ने नोच ली। जिस्म का हिस्सा हिस्सा गोश्त का ढेर बना हुआ था। चारों गर चारों गेट तीन चार जंगली कुत्ते खड़े उसका मांस खाने में मगन थे। उसके उनके साथ ही एक और आदमी मोबाइल कैमरा खोले रुख उसकी तरफ किए खड़ा था। कैमरे के पीछे भी कोई नजर आया था जो ये मंजर लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट लिए सिगरेट उंगलियों में दबाए देख रहा था। फॉक्सी के वजूद में जुम्बिश पैदा हुई। कदम लाश की तरफ बढ़ाए थे। वो कुत्ते उस पर भौंकने लगे। मगर वो सब फरामोश किए लाश मगर वो सब कुछ फरामोश किए लाश के करीब आ गई थी। हाथ उसके चेहरे पर फेरा जो खून से भर चुका था। आंखों में पैदा हुई जलन नमी बनकर आंसुओं की शक्ल में बाहर आई थी। और फिर देखते ही देखते वो जिसे मार मार कर उन सबको देखते रोने लगी। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। जिस जिसने ये किया है उन सबसे बदला लूंगी। जिस जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है मैं उसे सख्त सजा दूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सब एक दिन अपने अंजाम को पहुंचोगे। इन तीन नफूस में से किसी ने भी कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया। आखिरकार थक हार कर वो इस मंजिल से गाफिल हूँ और फिर क्या हुआ से कुछ मालूम नहीं था। आंखें खोली तो खुद को नर्म और मुलायम बिस्तर पर पाया था। आसपास नजरें घुमाई तो जगह कुछ जानी पहचानी लगी। जाने क्यों उसे कुछ याद आने लगा था। चारों तरफ नजरें घुमाई, वही पर्दे, वही पलंग, वही आईना। जहन पर जोर दिया तो यादाश्त वापस आई थी। ये उसी का कमरा था। लेकिन वो यहाँ कब कैसे और किस वक्त आई थी। वो तो एक ऐसी जगह थी जहाँ से निकलने की उसने हार मान ली थी। पास ही खाने की ट्रे रखी थी नजर आई थी जिसमें मामूल का खाना था जो उसे किसी मनोसलवा के बराबर लगा। बचा 2 दिन की भूख थी। बगैर किसी तरफ देखे बैठकर खाने लगी। उसे किसी की मौजूदगी का एहसास जागा तो गर्दन उठाकर आईने से टेक लगाए स्याह 3 पीस सूट, पाँव में चमकते स्याह जूते पहने बॉस नजर आए थे। खुद को देखता पाकर वो हंसने लगे। फॉक्सी खौफजदा हुई। वो उस पलंग से टकराई थी। बॉस कदम कदम चलते उसके पास आए और कुछ फासले पर बैठे। तुम तो 2 दिन में ही हार मान गई। मैंने तो तुम्हें काफी ताकतवर तस्वर किया था। अपना सर्द हाथ उसके हाथ की पुष्ट पर रखा तो झटके से उसने हाथ निकाला था। बॉस मुस्कुराई और अपनी बात जारी रखी। असल में तुम्हारे पास हिम्मत ही नहीं मेरा मुकाबला करने की। हार गई ना, मैंने कहा था। फॉक्सी के चेहरे पर डर खौफ समाया था। आंखों में गुस्सा उदाया। पलंग की चादर नोचकर इस्तिराब कम करने की कोशिश की। मैं तुम्हें रानी बनाना चाहता, लेकिन तुमने खुद अपने लिए ये राह चुनी है। अब चाहे कुछ भी तुम्हें तो भुगतना पड़ेगा ही, क्योंकि अब हरगिज किसी नरमी की तवक्का ना रखना मुझसे। बॉस ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा। उसने छुड़ाने की जहमत नहीं की। वो एकटक उन्हें देखे गई। मेरे इस फैसले से उस औरत ने भी बगावत की थी। फिर मैंने उसे भी सजा दी। अब तुम्हारी बारी है। सोच लो अगर मेरी बात ना मानी तो। वो ढके छुपे लफ्जों में धमकी देते उठे थे। मैं तैयार हूँ। उसे अपनी आवाज़ कहीं दूर से सुनाई दी थी। बॉस के होठों पर फातिहाना मुस्कुराहट रिंगी। वो उसकी तरफ झुके और सर पर हाथ फेरने लगे। गुड जॉब। ये किया ना तुमने सही फैसला। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। शाबाश। मुझे लगा कि तुम भी उस औरत की तरह निकलोगी, लेकिन शुक्र है कि खुदा का तुमने ऐसी कोई हिमाकत नहीं की। तुमने साबित कर दिया कि मेरी ही औलाद हो। बहुत सीधे हुए। कल तैयार रहना। मैं सुबह आऊँगा और तुम्हें इस कारोबार के मसाइल बताऊँगा। हुक्म उसके कोश गुजार किया और ये जा वो जा। फॉक्सी किसी खाम फॉक्सी खामोशी से उन्हें जाता देखती रही। वो यहाँ होकर भी किसी और दुनिया की बासी लग रही थी। उसके कानों में आज तक वो अल्फाज गर्दिश करने लगे। एक मंजर आबोताब के साथ उजागर हुआ और एक बार फिर नई तकलीफ उभरी थी। दिल में दर्द जागा था। जहन को झटका और फिर उठ खड़ी हुई। ये फैसला उसने कुछ सोचकर ही लिया था। उसके पाँव वजन बर्दाश्त करने से कासिर थे, मगर फिर भी हिम्मत मुश्तमा करते हुए डटी रही। पलंग की मदद से सहारा लिए वो चलते आईने के सामने आई। चेहरे पर मौजूद जख्म पर हाथ फेरे। इख्तियार सिसकी निकली। आंखों के नीचे स्याह हल्के नजर आए थे। जहन पर जोर देने के बावजूद भी उसे याद नहीं आया कि कभी कोई जख्म चेहरे पर देखा हो। लबों ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर एक अनजाना सा दर्द पैदा हुआ था जिसकी तकलीफ पूरे जिस्म में महसूस की जा सकती थी। जो फैसला करने से वो डर रही थी वो पल में हो गया था। आज से तुम्हारी एक नई पहचान होगी। वो पहचान जो सबसे मख्फी रहेगी। किसी को तुम्हारी असल हकीकत मालूम ना होगी। तुम क्या हो, कौन हो, कोई नहीं जान सकेगा। अगर किसी ने जाने की हदूद पार की तो खुद जिम्मेदार होगा। आज से तुम्हें लोग नए नाम से जानेंगे, इस नाम से जो तुम्हारी पहचान कहलाएगा। आज से लोग तुम्हें फॉक्सी दी फॉक्स के नाम से जानेंगे, वो फॉक्स जो हमेशा चौकन्ना रहता है। मेरे हाँ के पीछे एक और राज भी है। वो राज जो बस मेरे इल्म में है। यही राज मेरी ख्वाहिश बन चुका है। वो राज जिसे मैं हर हाल में पूरा करूंगी। मैं बदला लूंगी। खुद की आवाज़ बनूंगी। ये खेल मेरे बाप ने शुरू किया, इसका इख्तिताम मेरे ही हाथों होगा। मैं उनके मगरू कारोबार के
باقی ایماندار راز دیکھ کر انہیں استعمال کروں گی۔ میں آج سے عہد کرتی ہوں، میں محض ایک چالاک مہرہ نہیں بنوں گی، بلکہ وقت آنے پر وہی چالیں استعمال کروں گی۔ وہ آنکھوں میں غصے کی آمیزش لیے بولتی رہی تھی۔ منظر جھٹکا اور خود کو حال میں پایا تھا۔ ماضی کی طرح وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، چہرے پر نظریں جمائی تو ان کے زخموں کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا تھا۔ خود کے نقش و نگار کو دیکھتی بڑبڑانے لگی۔ باس کی زندگی کا انجام میں خود لکھوں گی، ان کی زندگی اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گی۔ I will kill him soon۔ اور ایک دم سے اس نے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر شیشے پر ماری۔ شیشہ اس کے سامنے چکنا چور ہو کر زمین پر گر گیا تھا۔ ہاتھ سے خون کی لمبی فوار پھسل کر زمین پر گرنے لگی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ آئینے میں نظر آتے خود کے ٹوٹے پھوٹے آدھے سراپے کو دیکھتے ہنسنے لگی تھی۔ میں فاکسی ہوں، فاکسی دی فاکس، وہ فاکس جو ہمیشہ چوکنا رہتا ہے۔ وہ دونوں آفس میں موجود تھے۔ تابش نے سیاہ شرٹ پر کارگو پینٹ پہن رکھی تھی، جبکہ حاشر نے سفید شرٹ پر سیاہ پینٹ، بال پیچھے کی طرف سیٹ کیے ماتھے پر بل لیے گہری سوچ میں گم تھا۔ تابش کو آئے 5 سے 6 منٹ ہونے کو تھے، لیکن اب تک ان کے مابین کوئی بات نہ ہو سکی تھی۔ انگلی سے ٹیبل پر دستک دی تو حاشر ہوش میں آیا۔ کیا ہوا؟ بولو۔ بری آنکھیں اس پر جمائیں۔ کچھ نہیں ہوا، بس تم چپ چاپ ہو، ایسا کیوں؟ اپنی کونی ٹیبل پر رکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے لگا۔ نہیں تو، حاشر نے بے توجہی سے کہا اور اپنا لیپ ٹاپ کھولنے لگا۔ تابش نے اس کے انداز پر سانس خارج کی۔ یار، کس بات کی پریشانی ہے بتاؤ مجھے۔ حاشر کے ہاتھ ساکت ہوئے۔ یکدم ہی دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ دھڑکنے کی آواز بآسانی وہ کان میں سن سکتا تھا۔ اپنی نظریں اس کی وہ طرف پھر کرسی سے جماتے 2 انگلیوں میں سر دبانے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیوں، لیکن میرا خیال بار بار فجر کی جانب جا رہا ہے۔ میرا دل گھبراہٹ کا شکار ہے، گہرے وسوسے دماغ میں پیدا ہو رہے ہیں۔ نہ جانے وہ کیسی ہوگی۔ نہ وہ میری کسی فون کال کا جواب دے رہی ہے اور نہ ہی کسی وائس نوٹ کا۔ تابش اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کمرے میں بنی دیوار کے گر کتابوں کے ریک کو پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے دیکھنے لگا تھا۔ پچھلے دنوں بتایا تو تھا کہ ریہاب سینٹر میں ہے، وہاں موبائل استعمال کرنا منع ہے۔ ہو سکتا ہے اس وجہ سے کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ حاشر حیران ہو، دماغ پر لکیر ابھری، دل گھبراہٹ کا شکار ہو۔ لیکن کب تک؟ تابش نے مڑ کر ایک نظر اسے دیکھا، آنکھوں میں نرمی تھی۔ جب تک سیشن کمپلیٹ نہیں ہو سکتا تب تک۔ حاشر نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا ہمیں وہاں کسی سے ملنے کے لیے اپائنٹمنٹ لینی پڑے گی؟ بالکل۔ تابش اپنے موبائل میں کچھ دیکھنے لگا جب حاشر بولا، میں ملنا چاہتا ہوں ان سے، پچھلی بار بھی مل نہیں سکا تھا، کیا تم میرے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہو؟ تابش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ان میں کچھ تھا جسے دیکھ کر وہ منع نہ کر سکا۔ میں کوشش کروں گا۔ حاشر کو اس کا جواب مل چکا تھا، اسے محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری بوجھ اس کے دل سے سرک گیا۔ بالآخر 3 ہفتوں کی مشکل، تکلیف دہ اور گھٹن زدہ دنوں کو گزار کر اپنی جان سے پیاری عزیز سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل کرنے والا تھا۔ کچھ دیر بعد تابش نے اس کے چہرے پر نظر جمائی جو لیپ ٹاپ میں مصروف ہو چکا تھا۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ حاشر نے اس کی طرف دیکھے جواب دیا۔ ہاں بولو۔ تابش کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تمہاری نظر میں محبت کیا ہے؟ حاشر اس کے سوال پر حیران ہو۔ اچانک سے اسے کیا ہوا تھا جو اس طرح کے سوالات کر رہا تھا؟ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹاتے اسے دیکھا۔ ایک خوبصورت احساس، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہیزل آنکھیں پل بھر کو چمکی اور پھر بے دہانی میں لب مسکرانے لگے۔ حاشر کچھ اخذ کر نہ سکا تھا، گہری سانس بھری۔ محبت کے کئی اقسام ہیں دنیا میں، جیسے ماں باپ کی اولاد سے، اولاد کی ماں باپ سے، دوست احباب سے، بہن بھائی سے۔ ان محبتوں کا کوئی رد و بدل نہیں، لیکن ویسے ہی ایک اور محبت بھی ہوتی ہے جو ہمیں اپنے پسندیدہ انسان سے ہوتی ہے۔ یہ والی سب سے مختلف ہوتی ہے۔ اس میں آپ اپنے پسندیدہ انسان کے دکھ درد سب محسوس کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ درد اس کے نہیں، آپ کے اپنے ہوں۔ تابش یکٹک اس کو سننے لگا تھا۔ ذہن میں وہی دن گھومنے لگا جب وہ احساس سے آشنا ہوا تھا۔ تب اسے صفا کو روتے دیکھ کر بالکل ویسے ہی محسوس ہوا جیسے حاشر بیان کر رہا تھا۔ حاشر نے اپنی بات کہہ کر آنکھیں موندی۔ یک ذہن کے پردوں پر وہ شہد آنکھوں والی لڑکی نمودار ہوئی تھی۔ حاشر نے بھی وہی محسوس کیا، وہ سب گوشگزار کر دیا۔ اسے بھی اپنی پسندیدہ عورت کے اندر پر درد ہوا تھا، ایسا جو شاید زندگی میں کبھی نہ ہوا۔ آنکھیں کھولی تو نظر تابش پر گئی۔ ایک سوال زبان پر مچلنے لگا لیکن وہ پوچھنے سے ڈر رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ کیا تم بھی کسی سے محبت کرنے لگے ہو؟ تابش نے سنبھلتے نفی میں سر ہلا دیا۔ توبہ کرو یار، میں کیوں محبت کرنے لگا؟ وہ تو ایسے ہی سوال پوچھ لیا تھا۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے کی غرض سے اٹھ گیا تھا۔ میں محبت کے چکر میں پڑنے والا انسان نہیں، اس کے علاوہ اور بھی زندگی میں بہت کچھ ہے کرنے کو۔ حاشر مٹھی ٹیبل پر رکھے اسے دیکھے گیا، پھر کندھے اچکاتے واپس کام میں مگن ہو گیا۔ مگر تمہارے چہرے کے تاثرات تو کچھ اور ہی کہانی بتاتے ہیں۔
ताबिश हैरानी से मुड़ा। क्या मतलब? उसको खफगी से देखते सामने आया था। मैंने बस वही कहा जो मुझे नजर आया है। अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। वो अपने काम में मसरूफ रहा जब ताबिश बोला था। तुम अपनी तरफ से कुछ भी क्या सराहियां करनी बंद कर दो, ऐसा कुछ नहीं। हाशिर मुस्कुराया था। मुझे इंतजार रहेगा ताबिश। ताबिश कुछ देर गुस्से से देखता रहा, फिर कमरे से ही चला गया। 2 दिन बाद ताबिश हस्बे मामूल अपने मेज़ के बजाय आज पलंग पर बैठा काम कर रहा था। कमरे में जद बत्ती कमरे में जद बत्ती उजागर थी। साइड टेबल पर रखा हुआ आधा चाय का कप इस बात की निशानदही कर रहा था कि वो कुछ देर पहले चाय के मजे लूट रहा था। सुरमई रंग की आगली स्तीन वाली शर्ट के साथ खुला पजामा पहने रात के इस पहर यही कोई 12 या फिर 2 का वक्त था जब उसके बराबर में रखा हुआ फोन बज उठा था। इसे मालूम था फोन करने वाला इंसान कौन है, इसीलिए बगैर स्क्रीन पर देखे मोबाइल कान से लगा दिया था। जी बोले। किस लिए याद किया है आपने हम नाचीज को? अंदाज में संजीदगी थी और आंखों में शरारत। एक काम था इसीलिए फ़ोन किया। ताबिश के लबों ने मुस्कुराहट को छुआ। जी जी, हमें मालूम है आप हमें बस काम के बात पर ही याद करते। इसीलिए तो पूछा कि क्यों याद किया। कीपैड पर उंगली चलाते हुए दूसरी टैब खोली थी। कल मैं ऑफिस लेट आऊँगा, इसीलिए तुम सुबह जल्दी उठकर चले जाना। बस यही बताना था। ताबिश ने हैरानी से मोबाइल की स्क्रीन को देखा, जैसे वो हाशिर को देख रहा हो। किस खुशी में, ज़रा बताना पसंद करेंगे? फजर से मिलने। बताया तो था, भूल गए क्या? ताबिश ने उसकी बात पर गहरी सांस भरी थी। ओह हाँ, याद आया। चलो ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें हाशिर साहब। उसने हाशिर की सुने बगैर फ़ोन काट दिया और काम करने लगा। तभी ख्याल उसके जहन पर लपका। वो काफ़ी दिनों से कुछ ज़रूरी काम सर अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, मगर हालात को मद्देनज़र रखते हुए फिलहाल चुप रहा। लेकिन अब इससे इंतज़ार करना महाल हो रहा था। अब उसके पास मौका भी था और दस्तूर भी। वो लाख चाहने के बावजूद भी इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। उसका दिल कह रहा था कि वो बस किसी भी हाल में अपना हाल दिल सफ़ा के सामने खुशगुजार करे। उसका ये मामला अनजाने में ही सही हाशिर ने हल कर दिया था। वो दिल ही दिल में हाशिर का बहुत शुक्रगुजार हुआ। लैपटॉप शट डाउन किया और फिर कमरे की बत्ती बंद करते सो गया। ये पहली सुबह थी जिस पर ताबिश जल्दी उठने के लिए अलार्म लगा रहा था। वरना तो वो हमेशा ऐसा हुआ कि वो सुबह उठते कोई भी इतना वरना तो हमेशा ऐसा हुआ कि वो सुबह उठते हुए कभी भी इतना खुश नहीं था। बाकी का नावल जानने के लिए इंतज़ार करें अगले एपिसोड का। मिलते हैं इसकी अगली किस्त में। अल्लाह हाफ़िज़।